बिरयानी जिज्ञासा एबीवीपी की तरफ से पुनः आपके आने का शुक्रिया अदा करती हूँ। I extend a very warm welcome to everyone present here. Your presence means a lot, and when I say it, I mean it. क्योंकि आप आ गए तो चमकने लगी है ये दीवारें, वरना कल तक तो यहाँ बड़ा अंधेरा था। Also, I would like to extend my warm greetings to our own Gen Zs. Any Gen Zs in the house? Can't hear. I guess we don't have any now. तो चलिए, जिन्हें सुनने के लिए हम सब थे बेकरार, वो घड़ी आ गई. Finally, we are proceeding towards our scientific session. मंच की गरिमा को बढ़ाएं. वैसे तो मैं निमित्त मात्र भी नहीं कि सर का परिचय कर सकूं, पर फिर भी सर की परमिशन लेकर मैं ये गुस्ताखी करने जा रही हूं. वैद्य तपन कुमार सर. Sir is fourth successor of a legionary Ayurveda practicing family of renowned stalwarts of Ayurveda. Sir, please, sir. Sir graduated from JS Ayurveda Mahavidyalaya in 1983. Sir post-graduated from IPGTRA Jamnagar in 1986. Also started professional practice of Ayurveda since 1987. Along with this, Sir served at various reputed academic institutions in various capacities, from lecturer to Emeritus Professor since 2002 till date, as a teacher, PG guide, PhD guide, etc. Special area of academic interest has been Kai Chikitsa and innovative education during tenure of 2 decades. If you think this is enough, this is not. Sir nurtured n number of Vaidya graduates, postgraduates who are well spread across the country and overseas, both in the field of academics and professional practice as well. Sir humbly holds various posts at various trusts, professional houses, charitable organizations as a founder member, trustee, director, manager, advisory board member, etc., etc. As a team leader, Sir designed and successfully managed mega events in Ayurveda like Ayurveda Maharatna Yatra, Shirodhara Carnival, Sadguru Vandana, Mahotsav, World Records, etc. Sir established Samhita, the Parayani Ayurveda clinic for budding Vaidyas like us. Sir addressed public as well as scientific gatherings of national and international groups and conferences. Visited various countries for promotion of Ayurveda. Also designed courses for Ved, especially Nadi Pariksha and clinical nutrition, etc. As an innovative academician, Sir nurtured more than 100 plus Vaidyas, 100 plus, called Parayanis, who are successful practitioners of Ayurveda across countries and abroad. Sir कह रहे हैं बस करिए, बट मैं क्या कहूँ सर, अंत में बस इतना ही कहती हूँ कि गुरुवर आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाज़ा हमसे लगाया नहीं जाता. आपके गुणों का गुणगान करें तो करें कैसे कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं बनाया नहीं जाता. I request Ved Jatin Rathore ji to welcome sir. रिक्वेस्ट कि आप अपने ज्ञान, अपने नॉलेज से हम सभी को रूबरू कराकर हमें सौभाग्य प्रदान करें सर. ओवर टू यू सर. थैंक यू. मुझे यार चढ़ी हुई होती हैं और बीच में ये सब इंट्रोडक्शन करते हो तो फिर उतर जाए तो मैं ना जानूं. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? बस.
काम हो गया मेरा। महाराज जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आप सब लोगों की नींद उड़ाने की फर्ज था मेरा। वैसे ये प्रोटोकॉल का विरोध है, लेकिन मैं रह नहीं सकता। सच पूछूं तो ये जो मेरे बारे में सब बताया गया उतना तो मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन आप सब लोगों के लिए इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं आप सब लोगों को तहे दिल से मोहब्बत करता हूं। हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके हैं, कौन नहीं? हा, हम आपके हैं। आज प्रोटोकॉल इसलिए मैंने तोड़ा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा और एनी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस, आज इनॉगरल स्पीकर is on the stage with his girlfriend. Can you believe? Yeah, she is my girlfriend. Her name is Samhita, and I love her so much, and I won't feel any shame in hugging her passionately against you. यही तो वो शराब है जो पी के आप सब लोगों के सामने धुत होता हूं। यार इसको जरा दूर हटाओ, या तो फिर मैं दूर नहीं, संहिता से दूर नहीं हुआ जा सकता। हाँ हाँ हाँ, हुआ यूं कि निकलना कल सुबह आया, नहीं कल शाम आया, हाँ, तो कल रात बैठा था संहिता के साथ, बातें कर रहा था, तो मैंने आप सब लोगों के बारे में बताया संहिता को, भाई देख मुझे ये सब लोगों के साथ जाना है, क्या बातें करूं उनके बारे में, तुम्हारे बारे में बात करूं या फिर आयुर्वेद के बारे में बात करूं या और कुछ भी। तो बोली तू बोल लेना जो मन में आए। मैं बोला ऐसा नहीं है, मैंने टॉपिक दिया है, वो टॉपिक पर बोलना है। और टॉपिक क्या है? टॉपिक वही जो संहिता सुझाए। तो आज मैंने संहिता ने मेरे को जो बताया है उसके बारे में आप सब लोगों की बात साथ शेयर करना चाहता हूँ। और बाकी वो खंडेलवाल साहब ने बहुत सही बताया था, खचाखच और ठसाठस देख के आंखें तृप्त होती है। ठीक है, अब संहिता ने मुझे बोला कि आप सब लोगों से मैं आज धनेषणा के बारे में बोलूं। आचार्य चरक मेरी संहिता 3 ऐषणाओं के बारे में बात करती, प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। मैं उसको सीधा सीधा मीनिंग ये समझता हूं कि पहले खुद को बचाओ, प्राणेषणा, फिर पैसे कमाओ, धनेषणा, और अगर पैसे नहीं कमा सकते वट लो। तो आज हमें धनेषणा के बारे में बात करनी। बड़ी ताज्जुब होगी कि न मैं कोई रोल ऑफ वसंत कुसुमाकर इन डायबिटिक टाइप 2 या तो कैंसर के म्यूटेशन पर कार्सिनोजेनेसिस और उसका संप्राप्ति विघटन, ऐसी कुछ बात नहीं करने वाला हूं। जिससे एक बीवी 2 बच्चे शाम को भरपेट खा के आयुर्वेद को आशीर्वाद दे के सो जाए, वो कैसे किया जाए, ये आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं। चाहिए कि नहीं? बंदा
अपनी यूथ के, जवानी के 5.5 साल आयुर्वेद को देता है और उसके बाद वो अगर एक बीवी 2 बच्चों को शाम का खाना नसीब न कर सके और उसको अन्यपैथी का सहारा लेना पड़े, तो ये मेरी संहिता के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ये पता नहीं, मुझे पहले से ही सदगुरु से पता था और 87 से अभी तक जम के प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस से जो मजा आया, जो धनेषणा का परितृप्त अनुभव हुआ, उस अनुभव को आज मैं आप सबसे शेयर करूंगा। शुरू किया था 87 में, आप सब लोग भी 26 या 27 में शुरू करोगे। उस वक्त धनेषणा क्या है, कैसे पैसा कमाया जाता है, वो कुछ पता नहीं था। बैठ गए थे, प्रैक्टिस करनी है ऐसा सोच के। फिर जो तकलीफें हुई और उस तकलीफों में पार उतर के जो अभी की पोजीशन मेरी है, वो उसका नटशेल क्या है, उसके बारे में मैं आप सबसे बातें करूंगा। आप सब लोग सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में? अगर सेकंड ईयर में है तो बहुत अच्छा है। पहला काम आपको करना है, अपने नाम का इनकम टैक्स रिटर्न भरना है हर साल और इनकम टैक्स भरना है। दिस इज वेरी फंडामेंटल। ये एनसीएसएम के कोर्स में नहीं है, कोई कॉलेज भी शायद सिखाए ना सिखाए, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो पापा से बोल के एक ITR इनकम टैक्स रिटर्न भर दो। भले ही 5,000 इनकम बताई, 5,000 टैक्स भरो, ज्यादा नहीं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बोलना है कि मैं BMS होके बाहर निकलूं तब तक मेरे 3 ITR हो जाने चाहिए और उसकी इनकम इतनी दिखानी है कि मुझे कोई भी बैंक बिना दूसरे डॉक्यूमेंट के कम से कम 60 से 70 लाख की लोन इमीडिएट दे दे। अभी फिलहाल पापा के पैसे से BPL चल रही है अपनी, लेकिन अगर आप अभी से 3 ITR भर देंगे तो जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे तब आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होगी कि आप आराम से 70-80 लाख का लोन किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकेंगे। और अगर आपके पास 70-80 लाख है तो मैं नहीं समझता कि भारत में कहीं भी एक अच्छे वाला क्लिनिक, अच्छा इंटीरियर वाला क्लिनिक आप न कर सकें। और ये बोझ पापा पर नहीं आएगा। अभी तक पापा बोझ उठा उठा के पढ़ा रहे हैं, उनकी फर्ज में आता है तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए भी वो पैसे निकाले, ये तो बहुत मुश्किल बात है, ये ठीक नहीं है। इसलिए उसके लिए अभी से ये 3 ITR आपका हो जाना चाहिए। जब आप BAMS होके बाहर ऑन रोड आ जाओ तब तो PG करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है तो ये काम आज से ही अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके, पापा के, आपके तो होंगे नहीं, लेकिन पापा के चार्टर्ड अकाउंट से मिलके
3 ITR आपके भरवा दीजिए, ताकि 70-80 लाख का आपका क्लिनिक बन जाए। दूसरा, अगर 70-80 हजार का EMI होगा ना, तो ही आपकी नींद उड़ेगी। वरना अगर पापा के पैसा से दवाखाना खोला ना, फिर तो हाँ, आपको पैसे की अहमियत का ही पता नहीं होगा। इसलिए सर पर 80 हजार की तलवार लटकनी चाहिए, नींद उड़ जानी चाहिए, तो ही पैसा कमा सकते हैं। और सामान्य मृत्यु कारणम, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से पैसा नहीं बढ़ता, पैसा लगाना पड़ता है। यू नीड टू इन्वेस्ट, देन एंड देन यू कैन गेट। चीज बड़ी विचित्र है, कभी सुनना या अपेक्षा भी नहीं रखी होगी मेरे से, लेकिन ये सही बात है। धनेषणा अगर हमें बात करनी, और ये संहिता ने सुझाया कि भाई ये इसके बारे में बात कर, मैं तो कुछ बड़ी बड़ी बातें सोच के आने वाला था, लेकिन संहिता बोली तो फिर वही मैं बोलता हूँ। तो आपके पास पैसा हो हफ्ता निकालने का, या तो EMI निकालने की, नींद उड़ी हुई हो, तो ही आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पक्का याद रखिए। फिर दूसरा क्या करना है, अगर आपको अच्छा टैलेंट बोलने का है, तो आपको आपके अगल बगल की स्कूल्स है, कॉलेजेस है, और बेटियों के लिए किटी पार्टीज हैं, इसमें जाके लेक्चर देना शुरू कर दीजिए। जब आप अपना क्लिनिक खोलो, इनॉग्रेशन की एडवर्टाइज आए, तब तक सबको पता होना चाहिए कि हाँ ये वो हमारे यहाँ आते थे, या उनके आर्टिकल अखबार में आते रहते हैं, ये वही हैं। इतना इंट्रोडक्शन टू द सोसाइटी आपका हो जाना चाहिए। 2, तीसरा, क्लिनिक, और क्लिनिक में आपकी फी का स्ट्रक्चर, आपके एरिया का जो टॉप मोस्ट प्रैक्टिशनर है उससे 100-200 ज्यादा ही होना चाहिए। आप अपने एरिया का जो टॉप प्रैक्टिशनर है, अगर वो 1 रुपया लेता है, तो आपकी कंसल्टिंग फी मिनिमम 2 से 2.5 रुपया होनी ही चाहिए। आप बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ा ही चलता है। शुरू शुरू में तो कैंप करते हैं, फ्री निदान करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो सब लोगों ने फ्री निदान करके देखा, सब लोगों ने बहुत पढ़ पढ़ के देखा। अब प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। इसलिए जम के पैसे लेना ये आपका दूसरा कर्तव्य है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, संहिता बोलती है। संहिता क्या कहती है? आप अगर चिकित्सा करके पैसा लेते हो तो सोना छोड़ के बालू लेते हो। पांशु राशि में उपासते, जो स्वर्णम हित्वा पांशु राशि में उपासते। अगर आप चिकित्सा करके पैसे लेते हो, रुपये लेते हो, तो आप सोना छोड़ के रेत ले रहे हो। इसका मतलब चिकित्सा सोना है, वो आप दे रहे हैं, और रुपया धूल है। संहिता कहती भाई, मैं नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो भी चिकित्सा दो उसका मूल्य कितना होना चाहिए? उस दिन के बुलियन में
1 ग्राम सोने का जो भाव है वो आपकी फी होनी चाहिए। ये संहिता बोलती भाई, मैं नहीं। मीन्स कोई भी पूछे कि भाई आपकी कंसल्टिंग फी क्या है, तो 1 मिनट फोन करना है या तो नेट पर देखना है 10,000 है या 11,000। जो सोने का भाव है वो आपकी कंसल्टिंग फी या तो आपकी ट्रीटमेंट की 15 दिन या महीने जो भी लेते हैं। इस तरह से अगर संहिता को फॉलो करके ट्रीटमेंट करनी है तो ये तरीका है। आप कहेंगे यार क्या बंदा पकड़ के लाए हो, ऐसा ऐसा थोड़ा ही बोला जाता है। जी है। हमारा तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्यम क्रिया चोक्ता तंत्र सास्य प्रयोजनम। हमें ठीक पेशेंट को करना होता है। विषम धातुओं का तो कुछ किया नहीं जा सकता। सम धातुओं को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। गर्मी क्यों हो रही? सम धातुओं को रिस्टोर कर सकते हैं। विषम धातुओं का कुछ नहीं किया जा सकता। विषम धातुएं तो अपने आप खत्म हो जाती। तो सम धातु को रिस्टोर करना है तो क्या करना है? समदोष करना है, सम अग्नि करना है, सम धातु करना है, सममल करना है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पेशेंट प्रसन्नात्मेंद्रिय। पानी नहीं, गर्मी हो रही, कोई बात नहीं। पेशेंट प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाना चाहिए, ये संहिताकार बोलता है। और पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय करेंगे तभी तो वो पैसे छूटे करेगा। ये संहिताकार ने बोला है और वो पक्का वादे का पक्का है। आप आयुर्वेद की चिकित्सा करो, आयुर्वेदिक दवाई की चिकित्सा करो, रोग ठीक होगा कि नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन पेशेंट प्रसन्नात्मेंद्रिय जरूर हो जाता है। और प्रसन्नात्मेंद्रिय हो गया तो वो बोलेगा कि हाँ दवा लागू पड़ गई है, और फिर जो आप मांगोगे वो पैसा मिलेगा। और तीसरी बात, 2 तो हो गई, तीसरी बात ये है कि आपको एक संहिता अपने पास हमेशा रखना है। संहिता मीन्स चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता और शारंगधर। ये 4 है, उसमें से कोई भी, क्योंकि ये संहिताएं हैं। माधव निदान संहिता नहीं, भाव प्रकाश भी संहिता नहीं। जो सम्यक हित करे, सम्यक हितम प्रतिपाद्यम यस्या सा संहिता, जो सम्यक हित करे, ऐसी 4 है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन और कहाँ होते हैं? करोड़पति बनने के तरीके में भी 4 ऑप्शन होते हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी 4 ऑप्शन हैं और हम करोड़पति है ही। अब ये दिमाग से उतर जाए तो मैं कोई क्या कर सकता है? हाँ, इसमें से कोई एक संहिता आपके पास होनी चाहिए। वो 2 भाग वाली विद्युतिनी नहीं चलेगी, एक पूरी वाली। तो अगर चरक संहिता लेनी है तो चक्रपाणी टीका, सुश्रुत संहिता को पसंद करते हो तो डल्लन, अष्टांग हृदय को पसंद करते हो तो अरुंधत हेमाद्री, और शारंगधर को पसंद करते हो तो आठमल। 4 में से एक आपको खरीदना है और उसको पढ़ना नहीं है। 5.5 साल में पहली बार कोई ऐसी बात कर रहा है। संहिता लेना है और उसको पढ़ना नहीं है। अरे यार, आत्रेय की ओपीडी में अग्निवेश 300 साल तक बैठे और
100 साल तक संहिता का लेखन किया, तब जाके ये चरक संहिता बनी। अब जिसको 400 साल बनने में लगे हो, उसको आप 5.5 साल में 2 साल, वो भी 1 साल उत्तरार्ध और 1 साल पूर्वार्ध, वो भी इतने अध्याय के एमसीक्यू और इतने में से शॉर्ट नोट और इसमें से लॉन्ग हिस्ट्री, क्या संहिता पढ़ेंगे आप? हमारी कैपेसिटी बाहर की बात है, हमारे पास उम्र ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। अग्निवेश के पास तो 400 साल थे, आत्रेय के पास भी 400 साल थे, हमारे पास तो ले दे के 70-80 साल है। आप सोचो, संहिताकार ने भी शादी की उम्र कौन सी बताई है? 17 से 25। तो उस 400 साल पैदा जीने वाले ने भी शादी की उम्र 25 की बताई है। तो चरक या तो अग्निवेश की भी शादी तो 25 में हो गई होगी, 25 में हो गई हो तो 50 तक 1, 2, 3 जो भी इच्छा होगी वो हो गए होंगे बच्चे। तो बाकी के 350 साल उन्होंने एक ही ध्येय संहिता पर लगा के रखा और वो लिखा। हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको समझना, समझ पाना। इससे वाव इफेक्ट आ सकती है। इसको अब क्या बात है, 350 साल तक लिखा। यस, exclamation is the only response we can give to the Samhita. No research, no study, only exclamation. Wow, what a wonderful effect, what a wonderful effort. और ये आप इसको हग करके कर सकते हो, दिन में 3 बार पैशनेटली हग करना है संहिता को। ये सनातन संस्कृति बोलती है 3 बार संध्या करना है, त्रिसंध्या। तो वैद्य के लिए त्रिसंध्या क्या होगी? संहिता को 3 बार जितना करीब कर सको उतना करना है। और खुद संहिताकार भी कहता है कि येषु 12 शास्त्री हृदि तिष्ठति संहिता। संहिता किधर रखने की चीज है? हृदय में। हम रखते कहां हैं? इडियट बॉक्स में। ये तो गार्बेज है, वहां संहिता को नहीं बिठा सकते। संहिता के लिए दिल चाहिए, साफ दिल, वहां उसको बिठाना है। और जिसने भी यहां बिठाया उसके लिए चरक क्या बोलते हैं? त्रिवर्गम प्राप्यति पुष्कलम। त्रिवर्ग मीन्स धर्म अर्थ काम, उसमें अर्थ आता है और वो पुष्कल मिलता है। विधिना पठन, ये सब लास्ट में लिखा है। सिद्धि 12। टन टना टन 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 तारा, पढ़ लेना सिद्धि के 12। एक बार से दिल नहीं भरेगा, पढ़ना उसको 12 ही 12। टन टना टन 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 तारा। संहिता को 3 बार हक करनी, ITR भरना है, आपकी कंसल्टिंग फी को टॉप मोस्ट रखना है। ये करेंगे तो धनेषणा बहुत अच्छी तरह से आपकी संपन्न होगी। कोई भी ट्रीटमेंट आप आयुर्वेद की, सीतोपलादी से लेके स्वर्ण वसन मालती तक, गुड़ुची से लेके कामदुधा मोती तक, विषमुष्टि से लेके बृहत्वाद चिंतामणि तक, कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, आपने व्याधि की ट्रीटमेंट की तो मुश्किल है,
लेकिन अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट की तो वो एक ही हफ्ते में प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाता है। किसी भी औषध में देखो, त्रिफला, त्रिकटु, ऐसे औषध, यष्टि मधु, ऐसे औषध पड़ते ही हैं। भले ही 50-60 औषध हो, लेकिन ये सब होते ही हैं। ये सभी में त्रिफला, त्रिकटु, सभी में पारद गंधक। ये भी कोई तुक है, कोई दिमाग में उतरने वाली बात है, लेकिन है, लिखा है, भाई ने बोला है तो होगा ही। हमारे लिए तो चरक ही मुन्ना है, मुन्ना भाई, उसने बोला है। तो ये त्रिफलो, त्रिकटु, जष्टिमत, वो सब क्या है? पेशेंट को प्रसन्नात्मेंद्रिय करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंट अगर प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाता है तो आपको अपना मानता है। ये राहुल गांधी जैसी फील आ रही है, बार बार हिलाते लगा। तो कहना मैं ये चाहता हूं, भटका दिया ना रास्ते से, कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाइयों में ये त्रिफला, त्रिकटु, जष्टिमद होता है, वो प्रसन्नात्मेंद्रिय करने के लिए होता है। कोई भी रस औषधि में पारद गंधक होता है, वो प्रसन्नात्मेंद्रिय करता है। पारद है वो शिव जी का शुक्र है, गंधक है वो पार्वती का रज है। ये दोनों मिलते हैं और घर्षण होता है, उससे आनंद पैदा होगा ही, प्रसन्नात्मेंद्रिय होंगे ही। आप में से कईयों ने ये अनुभव कर लिया होगा। प्रसन्नात्मेंद्रिय जब पुरुष का शुक्र और स्त्री का रज घर्षण में आते हैं, प्रसन्नात्मेंद्रियता पैदा करते हैं। वो रस और गंधक हो, त्रिफला, त्रिकटु, यष्टिमत हो। तो प्रसन्नात्मेंद्रिय पेशेंट को करना है। फिर और क्या कर सकते हैं? समदोष कर सकते हैं, समाग्नि कर सकते हैं, समधातु कर सकते हैं और सममल क्रिया कर सकते हैं। इतना करते हैं तो महाराज कहते हैं, सुश्रुत महाराज, प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? पेशेंट को, आप तो बात की बात करता हूं, पेशेंट को क्या चाहिए? वो आपके पास क्यों आता है? टट्टियां हो रही है, उसके कारण उसका रोजगार डिस्टर्ब हो रहा है। बुखार आया है, उसके कारण वो जॉब पर नहीं जाना पड़ता है, सीएल लेनी पड़ रही, इसलिए वो आपके पास आता है। अगर वो पेशेंट को संप्राप्ति का विघटन जब करना तब करना, पहले ज्वर हर्ब दशमानी देके उसका बुखार कम कर दो, वो दोबारा जॉब पर जाना शुरू कर दे, तो वो प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाएगा। उसको कहाँ पता है कि मेरे कौन से दोष कहाँ से निकल के आमाशय से वो बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निम ज्वरदा हास्यु, उसको तो उससे कुछ लेना देना नहीं होता। वो चाहता है कि भाई मेरा रोजगार ठीक से चले, मैं खुश रहूं। और ये आयुर्वेद से बहुत अच्छा होता है। पैरासिटामोल बुखार उतार देती है, लोप्रामाइड टट्टियां बंद कर देती है, लेकिन प्रसन्नात्मेंद्रिय कोई नहीं करता। ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, हमारी स्पेशलिटी है, और उसको हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। आपने नोटिस किया होगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी या तो किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, तो इतनी गठान होती है, वो बढ़ती जाती है, लेकिन पेशेंट दवाई नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? साहब ये बढ़ तो रहा है, लेकिन अच्छा लगता है, दवाई चालू रखूंगा,
खुद हम पजल हो जाते। जिसके लिए जो निदान लेके आया था वो तो वहीं का वहीं है, शुगर तो बढ़ी हुई ही है, लेकिन वो दवाई क्यों बंद नहीं कर रहा है? जबकि 24 घंटे में बुखार ना उतरे तो अंग्रेजी डॉक्टर को तो फटकार पड़ जाती है, सर 24 घंटे हो गए बुखार नहीं उतरा बेटे का, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ले जाए, कोई बड़े डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा कभी कोई वैद्य को नहीं पूछता। ऑन द कॉन्ट्ररी वैद्य तो बोलते हैं 24 दिन तक 13 दिन तक बुखार ना उतरे तो मुझे नहीं कहने का, तो ट्रीटमेंट करूं। और बिल्कुल हाँ वैद्य जी आप पुड़िया दे दीजिए, 14 दिन तक नहीं करते बोल। ये फायदा है आयुर्वेद का, उसको हमें एक्सप्लोर करना है। 6 महीने लगेंगे, ये तो धीरे धीरे काम करता है, ये हमारे लिए फायदा है। वो पेशेंट भी जानता है कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, तो हमें क्या जल्दी है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाता है, हमारा हो जाता है। फिर अगर आप में ताकत न हो तो अलग बात है, वरना आपकी ही दवाइयों से पेशेंट का समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक क्रिया हो जाता है। आपको लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं। वो सब जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो सब सोचा जा चुका है। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट किया जा सकता है वो सब डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। और सब हर एक तरीके से, हर एक पहलू से चेक करके जो उसको लास्ट में मिला उसी को इधर लिखा है। परीक्षके ही बहुविधम परीक्ष हेतुभिर साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः ससिद्धांत। तो सब कुछ इधर लिखा हुआ है, सिर्फ उसको मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम न मीमांसम कथंचन। इसकी चर्चा ही नहीं करने का। वो जो आजकल हम मुन्ना भाई के बारे में बोलते हैं, भाई ने बोला है तो सही ही होगा, इतना सॉलिड उन्होंने भी लिखा है। इसलिए मैं से चरक को मुन्ना भाई बोलता हूं। हम सब रिपीटर्स हैं उनके। संहिता ने जो लिखा है उसको फॉलो करना है, उसी को, संहिता को ही पकड़ के चलना है। इतना बड़ा पावरफुल और कौन मिलेगा आपको? जो भी होगा वो CCIM का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD होगा पढ़ाने वाला। संहिता कभी कोई कॉलेज में गई थी? चरक कौन सी कॉलेज का ग्रेजुएट था भाई? सुश्रुत का PG कहां से, NIA से है या फिर IPGT से? नहीं, यूनिवर्सिटी तो डिग्री देती, प्रैक्टिस करने का जज्बा, ताकत वो संहिता देती। इसलिए मैं आप सब लोगों को गुजारिश करता हूं कि एक संहिता ऐसी भी हो जाए जिसको न पढ़ा जाए, जिसका न रट्टा मारा जाए, सिर्फ उससे प्रेम किया जाए, मोहब्बत किया जाए, और दिन में 3 बार पक्का हक किया जाए। ये मैं आपको बहलाने के लिए, बहकाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा मत समझना। हाँ, ये कोई गुदगुदी कराने के लिए नहीं, समृद्धि के लिए, पैसे के लिए आ रहा हूं मैं। पूरा घंटा बोलना है तो थोड़ा तो कुछ इधर उधर बोलना पड़ेगा ना। इसलिए मैं कहता हूं, अब समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक क्रिया, अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे समदोष करना है तो अलग बात है, उसकी विधा भी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। लेकिन आप बोले कि नहीं मेरे को तो पैसा चाहिए, समदोष समाग्नि मेरे बस की बात नहीं, कोई बात नहीं, संहिता पे छोड़ दो, पेशेंट की नाड़ी पे हाथ रखो, संहिता पे हाथ रखो और संहिता को बोलो तुम इस पेशेंट का समदोष, समाग्नि, समधातु, मलक क्रिया ये कर दे। वो प्रसन्न मात्रे में हो जाएगा, फिर मैं जो मांगूंगा वो देगा। और संहिता अगर किसी को ठीक करती है, ये चाय है,
ये भी संहिता बोलती है हर एक अध्याय के अंत में, भवन्ति चात्र। चरक भी चाय पीता था, इसलिए जब भी चरक के बारे में बात करो चाय पियो। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग संहिता, यू सी। तो इस तरह से समदोष समाग्नि करना है। पेशेंट का समदोष समाग्नि समधातु मूलक क्रिया जो भी आपके पास जितना भी। ये क्यों आवाजें आ रही हैं भाई? मेरी कोई गलती है? कहीं मेरा पैर कहीं पर, वो एक बुजुर्ग आईसीयू में दाखिल थे, वो नलियां वलियां लगी हुई थी और बेटा यूएस से आ गया, यूएस से आया। पापा, I have come, now I will take care of you and you will be all right. I am here. आप ठीक हो जाएंगे, मैं आ गया हूं, आपको बिल्कुल अच्छा कर दूंगा। तो वो बूढ़ा बोला, पहले तेरा पैर वो ऑक्सीजन की नली पर से उठा। मैं सोचा ये चिल्ला रहा हूं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की किसी नली पे, मेरा तो पैर नहीं पड़ गया। हाँ, तो समदोष समाग्नि समधातु मूलक क्रिया बार बार बोलता हूं क्योंकि यही एक रास्ता है, यही एक विधा है जो हम कर सकते हैं। तो समदोष समाग्नि समधातु मूलक क्रिया। समदोष कैसे करेंगे? आप सब लोग नाड़ी देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? हाँ, कहां देखते हैं? पैजामे में कि बूट में? कहां नाड़ी देखते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, कहां देखते हैं? हाँ, जीवसाक्षिणी नाड़ी। वहां आपने देखा पहली उंगली में वायु है, दूसरी उंगली में पित्त है, तीसरी उंगली में कफ है। लो, दोष के तो पता चल गया। दोषों के लिए सिंपली घी, तेल, शहद ये अनुपान में दो। और पता नहीं चला यार वायु है कि पित्त है, अपने को नहीं मालूम, तो घी, तेल और शहद को मिक्स करके दो। यद्वा करो भविष्य थी। कितना सिंपल है। लेकिन नहीं, हमको तो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, दर्शन, स्पर्श। अरे भाई, काम की बात करो ना। ये सब परीक्षा में पास होने के लिए शॉर्ट नोट वाली चीजें हैं। काम करते हैं ना, दुकान चलाना है तो इसी तरह चलती है। वायु के लिए विषमुष्टि, पित्त के लिए कुटकी, कफ के लिए बल्ला तक, वायु के लिए अजमोदादि, पित्त के लिए सितोपलादि, कफ के लिए पित्त के लिए अविपत्तिकर, कफ के लिए सितोपलादि, वायु के लिए बृहत्वात, पित्त के लिए स्वर्ण शिखर, कफ के लिए सुनवसन मालती। जैसी सोशल स्टेटस हो पेशेंट का, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करो तो समदोष तो बहुत आराम से हो जाता है। समधातु भी इसी तरह से होते हैं। और सममल भी, मल क्रिया ठीक करने में तो मास्टर है चंद्र बाबा। अवेलेबिलिटी के हिसाब से देते जाओ। पंचसकार, त्रिफला, स्वादिष्ट विरेचन से लेके जलोदरारी तक सब मल क्रिया को करने वाली बहुत सारी औषधियां हैं। ये इतना सिंपल, जिसको बोलते हैं ना उम्र छोड़ के डूंगरा पूजते हैं। गुजराती में कहावत है, उम्रा मुकीन डूंगरा पूजो छो। कांख में बच्चा और गांव में डंडोरा। अपने को ही आता है, इतना ही तो करना है। समदोष समाग्नि समधातु मूलक क्रिया, प्रसन्नात्मेंद्रिय हो जाएगा। पेशेंट जो मांगो वो देगा। ये तो हो गया पेशेंट का समध धातु साम्य, समदोष समाग्नि समधातु। वैद्य का कब होगा? हम तो चाहते हैं ना कि साथ धातु साम्य हमारा भी हो, हम भी प्रसन्नात्मेंद्रिय हो, हमारे बीबी बच्चे भी प्रसन्नात्मेंद्रिय हो। उसके लिए क्या करेंगे? हम क्या बृहत्वात खाएंगे?
अरे नहीं, हम खाएंगे तो हमको पैसा कौन देगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वैद्य का धातु साम्य कैसे करना है, ये भी आपके साथ में शेयर करता हूं। दोष कितने होते हैं? धातुएं और अग्नि 13। सीधा गणित है। 3000 वाले 13 पेशेंट 7 दिन, सिंपल। मोबाइल है ना, निकालो कैलकुलेटर निकालो। 3000 जिसकी फी है, ऐसे 13 पेशेंट 7 दिन और 4 हफ्ते, कितना हुआ? इतना करोगे तो आपका धातु साम्य हो जाएगा। कितना इजी है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस मैंने बता दिया। कौन सी बड़ी बात, कौन सी संप्राप्ति, कौन सा विघटन, कौन सा संप्राप्ति घटक, कौन सा सुदर्शन का पाठ, कौन सा इच्छा भेदी का पाठ पढ़ा दिया। जिनको पढ़ना था वो पढ़े, पढ़ के जो लिखना था वो लिख दिया। अब उसको क्यों बार बार लिखना? उसमें से अब खिचड़ी बनाई, आपको भूख लगी, मम्मी को बोला खिचड़ी बनाओ, बीबी को बोला खिचड़ी, सिस्टर को बोला खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनाई, फिर क्या करेंगे? भूख लगी है तो क्या करना है? खाएंगे? नहीं, देखेंगा मैं तो कि खिचड़ी बराबर पकी है कि नहीं। तो उसके लिए क्या, ऊपर से 1-2 दाने लो, बीच में से 2 दाने लो, नीचे से 1-2 दाने लो, दबा के देखो, हाँ ठीक पक गई है तो खाओ। नहीं, मैं तो हर एक दाना दबा के खाऊंगा, देखूंगा कि खिचड़ी पकी है कि नहीं। एक एक श्लोक और एक एक सूत्र का अर्थावयवशः अनुवाद और उसका अध्ययन मनन निधिध्यासन करूंगा। ये वही है खिचड़ी का हर एक दाना दबा दबा के देखना कि पकी हुई है कि नहीं। आप सोचो, जिस दिन आप अंतिम दाने को दबाओगे, पहले दाना का क्या हश्र हुआ होगा? सूख के कांटा हो गया होगा। खाओगे क्या? कुछ निकल जाएगा मुंह से। लगता नहीं हम सब लोग ये रिसर्च करने में या ये दाने दबाने में भूखे ही रह गए हैं। अपने आप से पूछो, गिरेबा में झांक के। ये मध्य प्रदेश वाले जैसी हिंदी तो मेरी नहीं है। बहुत उच्च स्तरीय हिंदी बोलते हैं मध्य प्रदेश में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम भूखे रह जाते हैं रिसर्च करने के चक्कर में। इसलिए मैं आज खाने का कैसे है वो बताने आया हूं। और वो ये है, 3000 वाले 13 पेशेंट 7 दिन 4 हफ्ते। इतना नहीं कर सकते 13 पेशेंट, और उसके लिए आज शुरू की कल से होना चाहिए ऐसा कहां बोला मैं। अभी आ रहा है वो बात। आपके पास 36 महीने, 3 साल या तो 1000 दिन, 3 में से जो पसंद करो, उतना टाइम है। 3 साल में या 1000 दिन में या तो 36 महीने में आपको अपनी प्रैक्टिस इस लेवल तक पहुंचानी है। 3000 वाले 7 पेशेंट, 13 पेशेंट 7 दिन।
4 हफ्ते, हाँ वो तो कम कैसे कर सकते। कैसे करना है समदोष, नाड़ी से देखो। लेकिन देना क्या है, घी तेल और शहद से लेके बृहस्पति और पसंद कुसुमाकर तक कुछ भी। पेशेंट को तो प्रसन्नात्म इंद्रिय होना ही है। 3000 में आपको जो परवड़ता है वो दो। चांद को भी बुला के वही कहते हैं ना, बैठेंगे बातें करेंगे। तो इस तरह से हमको 36 महीने में 3000 वाले 13 पेशेंट 7 दिन तक पहुंचना है। उसके लिए 1000 दिन या 36 महीने का डिवीजन कैसे करना है, ये आपको तय करना है। इसमें मेरी कोई नहीं चल सकती, क्योंकि मैं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मेरी पोजीशन, मेरे को कितने लोगों को खिलाना है, ये सब मेरा होगा। उस हिसाब से मैं 36 महीने को बांटूंगा कि पहले 6 महीने में यहां पहुंचूंगा, दूसरे 6 महीने में यहां पहुंचूंगा, तीसरे 6 महीने में यहां, ऐसा करके 3 साल में आपको यहां पहुंच जाना है। और 3 साल कोई इतना छोटा समय नहीं है किसी भी बिजनेस को। प्रैक्टिस इज ए बिजनेस, इट हैज नथिंग टू डू विथ डिग्री। टट्टियां बंद करते हो तो तुम BAMS हो, MD हो, MS हो, PhD हो, मायना रखता है। अगर टट्टी बंद ना हुई तो भाड़ में जाए BAMS और भाड़ में जाए MD, सीधी बात है। इसलिए प्रैक्टिस बिजनेस है, और बिजनेस का ये थंब रूल है कि 1000 दिन आपको देने पड़ते हैं, 1000 दिन गादी तपानी पड़ती, एक जगह पर बैठ के अवेलेबल रहना है। ये नेक्स्ट स्टेप है। 36 महीनों में ये 10,72,00,000 तक पहुंचने के लिए क्या करना है, उसकी कुछ टिप्स मैं दे सकता हूं। फाइनल तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या है वो मुझे नहीं मालूम। तो एक आपको ITR भर के लोन लेके बढ़िया क्लिनिक बनाना है। आपके एरिया में जो सबसे अच्छा क्लिनिक हो उससे भी अच्छा। उसके लिए 10 लाख ज्यादा लेना पड़े तो लेना है। क्यों? क्योंकि संहिता आपके साथ है, वो सब निपट देगी। कितना भी हफ्ता हो, कितना भी बड़ा EMI हो, कितनी भी खर्चीली बीबी हो, कितने ही पैसे उड़ाने वाले बच्चे हो, संहिता सब पार करती। लेकिन शर्त एक ही है, उसको अपनाना होता है, अपना बनाना होता है, और उसके लिए ये काफी है। मैंने बड़ी जद्दोजहद की 20 साल तक, सब संप्राप्तियां विघटन की, लेकिन वो मजा नहीं आया जो दिन में 3 बार हक करने पर जो समृद्धि आई, वो पिछले 10 साल में मेरे को 2 साल लगे थे। जब ये पता चला धातु साम्य का, 2 साल में मैं ये जो आपने काउंट किया ना वहां पहुंच गया था। और मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। हमने किया है, तुम भी करो, है कि नहीं? बहुत इजी है। आप लोगों को भी, एटलीस्ट जिन्होंने अभी शुरू नहीं की है या जिनकी जिंदगी पड़ी हुई है आगे की, वो सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 1000 दिन के लिए क्या करना है? जगह पर फिक्स करनी है, बढ़िया क्लिनिक बनाना है, और आपका टाइमिंग, आपका मोबाइल नंबर और
और आपकी अवेलेबिलिटी, ये 3 चेंज नहीं होने चाहिए। 2 रिंग बजी और आपका मोबाइल उठ जाना चाहिए, हेलो वैद्य तपन कुमार स्पीकिंग, और आपका एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, आपका क्लिनिक का टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने 36 महीने में से 35 महीने तक ये तीनों का पालन किया और लास्ट महीने में मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 से शुरू होगा। जो मुश्किल है बस ये 3 साल, 36 महीने, 1000 दिन, इसको आपको डेडिकेट करना पड़ेगा संहिता को, तो फिर बाकी का सब संभाल लेगी। जो सोचो वो हो जाएगा। ये कल्पवृक्ष है संहिता, 4 कल्पवृक्ष है भारतीय संस्कृति के, गाय, ग्रंथ, गुरु और यज्ञ। और ये चारों जहां हो उसको क्या बोलते हैं? गुरुकुल। इसमें से यज्ञ, गाय, ये तो मुश्किल है, या तो थोड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा कम है, या तो जिस लेवल पर हम 5 साल पढ़ के आए हैं उसमें कहीं गाय और यज्ञ का कोई महत्व ना आता है, ना समझाते हैं, ना कोई शॉर्ट नोट में भी आता है। बचती एक गुरु और ग्रंथ, ये हमारे पास अच्छे हैं। आप बोलेंगे नहीं यार, हमारे गुरु, हमारे टीचर तो ऐसे हैं, हमको तो वो कागज भरने का ही काम करवाते हैं। वो कैसे भी हो, आप शिष्य ठीक हैं, फिर गुरु कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको शिष्य बनना है। शिष्य किसको बोलते हैं? अनाग्रहस्तु शिष्ये है प्रथम लक्षणम, अनबायस्ड। जो भी गुरु कहे वो सब करना है। गुरु झूठा करवाए तो झूठा भी करना है, फेक पेपर बनवाए तो फेक पेपर बनाना है, लेकिन गुरु जो कहे वो करना है। अनाग्रही बनना है। अगर आप अनाग्रही हैं तो गुरु अपने आप में उतर जाएंगे। हमारे पास एक ग्रंथ है जिसको कैसे ट्रीट करना है वो मैंने सिखाया। दूसरे गुरु है, गुरु के साथ कैसे रहना है गुरु आप नहीं तय कर सकते। हमारी क्या औकात है गुरु देखने की? हमारी औकात है शिष्य बने रहने की। हम शिष्य बने हो रह सकते हैं। शिष्य बने रहेंगे तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे, आपका वर्जन अपडेट कर देंगे। और गुरु और ग्रंथ, ये और कौन है जो उसको फॉलो करते हैं? सिख गुरु और ग्रंथ को फॉलो करते हैं। ग्रंथ को सुलाते हैं, ग्रंथ को उठाते हैं, ग्रंथ को भोग लगाते हैं, ग्रंथ को पालकी बिठा के घुमाने ले जाते हैं। ग्रंथ बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु हो जाती है ग्रंथ की, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इतना ग्रंथ को व्यक्ति की तरह पूजते हैं। और आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि लिटरेसी सबसे ज्यादा केरला में है, लेकिन पर कैपिटा इनकम हो गया टाइम। ओहो, अब आगे वालों ने पूरा टाइम खा लिया तो मैं क्या कहूं? मेरे हिस्से में इतनी, मेरे हिस्से में माई, मुनव्वर राणा बोलते हैं ना, बाकी मेरे हिस्से में माई है। आप हम सबके हिस्से में गुरु और ग्रंथ है, उससे समृद्धि आ सकती है। समृद्धि कैसे लाना है उसका मैंने ये ब्यौरा आप सभी के पास प्रस्तुत किया। आपको शिष्यत्व को कैसे डेवलप करना है उसका एक टॉपिक है, वो मैं आप सबसे डिस्कस करता अगर ये बेटी ने आके ये चिट्ठी न डाली होती। शॉर्ट में बोल देता हूं, संहिता का पारायण, मंत्र, प्रार्थना
और सदगुरु के सानिध्य। ये 4 चीज करने से शिष्यत्व डेवलप होता है। गुरु कोई कैसा भी हो, ग्रंथ हमारे बहुत पावरफुल है। अगर गुरु भी पावरफुल हो तो सोने में सुगंध, लेकिन नहीं है तो ये 4 चीज से शिष्यत्व होता है, उससे गुरु प्राप्त होते हैं, और ग्रंथ इतना पावरफुल है कि जो चाहो जो मांगो। कल्प वृक्ष बोला ना मैंने, तो 2 कल्प वृक्ष तो हमारे पास है, गुरु और ग्रंथ। उसको हम एक्सप्लोर करें तो भी ये धातु साम्य तक पहुंचा जा सकता है। इस तंत्र का भी प्रयोजन यही है। हम समझते हैं पेशेंट का धातु साम्य नहीं, वैद्य का भी धातु साम्य करना है। चतुर्णाम बीजगादि नाम शस्ता नाम धातु वैकृते। हाँ, धातु चिकित्सा सा निगद्य मीन्स चारों का धातु साम्य होना चाहिए। विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। हम सोच रहे हैं कि सिर्फ रोगी का ही धातु साम्य नहीं, हमारा भी होना चाहिए। बीमा इंश्योरेंस वाले का भी होना चाहिए, उपस्थाता और रोगी का तो होना ही होना है, वरना तो हम भूखे मरेंगे। तो इस तरह से चतुर्णाम बीजगादि नाम, चारों का धातु साम्य होना हमारा पहले सोचना है। भाई हम धातु साम्य वाले होंगे, हम स्वस्थ होंगे तो दूसरे को बनाएंगे, हम ही भूखे होंगे तो दूसरे को क्या खिलाएंगे, खाक। तो कहने का मतलब है ITR भरना है, अच्छा क्लिनिक बनाना है, हाई इनकम ग्रुप में अपना काम करना है। थोड़ा और टाइम होता तो मैं BNI का भी बात करता, लेकिन अब छोड़ो, फिर कभी मिलते रहेंगे रास्ते में कहीं भी। तो इस तरह से आपका फ्री कंसल्टिंग और दवाई का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मूला, उसका अवधि 36 महीने, और उस टाइम में कैसे रहना है, टाइम संभालना है, मोबाइल और जगह, ये सबको ध्यान में रखना है। ये इतना आप करेंगे, शिष्यत्व को पकड़ के रखेंगे, पारायण प्रार्थना मंत्र पर सानिध्य रखेंगे, तो मैं चरक की ओर से आप सबको गारंटी देता हूं 3 साल के अंदर अंदर वो जो कैलकुलेटर में आपने आंकड़ा निकाला था, मैजिक नंबर आपका हो जाएगा 101%। सबका हुआ है, आपका क्यों नहीं होगा? तो आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से मेरे को सुना, और मुझे जिज्ञासा वालों ने ये मौका दिया, कितनी दूर से बुलाया। दूर का हूं, डोल भी हूं, इसलिए सुहावना तो होना ही है। दूर के ढोल सुहावने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको तहे दिल से प्यार करता हूं। लव यू ऑल। ऐसा ही बदलाव किया है सर। यहाँ उपस्थित एक वैद्य जी ने आपके लिए एक लेटर दिया है सर, जो मैं पढ़ना चाहूंगी, हम सबकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए। जी सर, वो लिखते हैं, आदरणीय तपन सर। ये तूने ही लिखा? नहीं सर, सर सुनिए तो सर। सर मेरे जीवन में तो आपने बहुत बदलाव किया है सर। जैसे आप कह रहे थे कि क्लिनिक खोलनी चाहिए सर, पिछले महीने मैंने क्लिनिक खोली है आपकी बात मानकर सर। सर वो लिखते हैं, आदरणीय तपन सर, सविनय निवेदन है कि मैं आपका एक छात्र हूं। मैं आपको यह पत्र अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए लिख रहा हूं। आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने मुझे बहुत प्रेरित किया है और मेरे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। मैं जानता हूं कि आप हमेशा हमें कड़ी मेहनत करना, आयुर्वेद के लिए सरेंडर होना और संहिता से प्रेम करना सिखाते हैं। आपका संहिता के लिए प्रेम और आयुर्वेद के लिए कंट्रीब्यूशन न ही हमें आयुर्वेद के प्रति बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में भी प्रोत्साहित करता है। Your teachings have been a foundation of our future. धन्यवाद यहाँ उपस्थित सभी वैद्यगणों की तरफ से सर, आपके लिए।
Now, I would request David Visenji to thank you, sir, with a token of love. Thank you so much, sir, for your time and effort, sir.